When it comes to audit reporting, the Company Act 2017 requires various obligations. And in the pursuance of these obligations, Securities and Exchange Commission of Pakistan has specified formats for auditors' reports through Auditors Regulation 2018. In today's session, we will learn about those specific formats that are mandatory on the part of auditor while preparing audit reports. And this webinar intends toward the capacity building of our members and students to enhance their understanding on the specified formats of auditor reporting. And now we are pleased to welcome our today's guest speaker, Mr. Ghulam Mustafa Qazi, Chairman, Technical Support and Practice Development Committee. Before moving any further, I'd like to add some more when it comes to Ghulam Mustafa Qazi. He is a fellow member of Institute of Cost and Management Accounts of Pakistan. Mr. Qazi is Chief Executive of Tariq Qazi Management Consulting. Last but not the least, he is serving South Asian Federation of Accountants, well known as SAFA, as a member of Small and Medium Practice Committee. And another great thing I'd like to mention about Sir Qazi is that he's having 20 years of diverse experience in the field of management and tax consultancy. Thank you, Sir Qazi, for joining us. Now it's over to you. Thank you very much, Madam. Bismillahirrahmanirrahim, honorable members, especially the practicing members, Mr. Bilal Saab, who is the Director of Technical Support, the support staff, who has worked hard to make this webinar possible. Assalamu alaikum. As told by Ms. Asfia Hanif, that today we are discussing about the audit reporting obligations under Director Reporting Obligations Regulation 2018 and as per the Companies Act 2017. So let's start the presentation. First of all, we will discuss about the key provisions of the regulations. So these regulations were issued under SRO 558/1/2018 on 26th of April 2018 in exercise of SECP's powers under section 512, which mentioned that the Commission has been delegated with the powers to make regulations under Companies Act 2017. So these regulations are called Auditors Reporting Obligations Regulations 2018, and these have been made applicable for reporting periods ending on or after June 30, 2018. इसका मतलब ये हुआ कि जून 30, 2018 या उसके बाद जो भी साल आ रहे हैं उनमें ये रिपोर्टिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी। तो इसलिए चूंकि हम लोग जब ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं तो हमें क्या रिपोर्ट्स इशू करनी है और किस तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कंटेंट्स उसके क्या होंगे, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस हैं जी। First of all, Act means Companies Act 2017. Wherever the word Act is written in these regulations, it means Companies Act 2017. Then second is the auditor's report. Auditor report means a report on the financial statements of a company by the auditor appointed by the company or the commission under the provisions of the Act, or in case of an insurer under the provisions of the insurance ordinance. कि audit report का मतलब है कि audit report on the financial statements of the company, जिस company की आप financial statements को audit कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आप report देंगे under company's ordinance, उसको audit report कहा जाएगा। और in case of insurer company, वो insurance ordinance के तहत जो report आप issue करेंगे उसको audit report कहा जाएगा। Then financial statements or financial statements जो हैं, these have been defined under clause 33 of the subsection 1 of section 2 of the Act. तो ये definitions जो company Act की जो definitions हैं, वहाँ पे जो definition financial statements की है वो apply होगी in regulations में भी। वो हम आगे चल के देखते हैं वो क्या होती है।
Then quarterly financial statements means the financial statements prepared by the listed company in accordance with the section 237 of the act. Section 237 of the Companies Act के तहत जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं उनको इस रेगुलेशन में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाएगा. Then review report means a report given by the auditor of the company in accordance with these regulations. इन सब की चूंकि एक्सप्लेनेशन आनी है बाद में, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है. सारी डेफिनेशन नहीं, कुछ डेफिनेशन जो मैं समझता था कि जो यूज़ होनी है हमारी इस प्रेजेंटेशन में, तो उनको डिस्कस करना ज़रूरी है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ consolidated financial statements means financial statements prepared by a holding company subject to section 228 of the act. यानी सेक्शन 228 ऑफ द एक्ट के तहत जो होल्डिंग कंपनी एक कंसोलिडेटेड एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है. ये डेफिनेशन से अब वो हमने एक जिक्र किया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 एंड देन क्लॉज 1, जिसमें हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. तो ये कंपनीज एक्ट में है जी, वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी शैल कंप्राइज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट जिसको कहते हैं एज एट द एंड ऑफ द पीरियड. जिस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड के एंड की डेट तक डेट की फाइनेंशियल पोजीशन आपने बतानी है. एंड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम or in case of a company carrying on an activity not for profit, an income and expenditure statement for the period. अगर वो for profit है तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होगी या अदर comprehensive income की स्टेटमेंट होगी. और in case of company which is not for profit, तो income and expenditure statement for that period. Period means कि जिस डेट से जिस डेट तक आप ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड का की इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है. और सी इसमें कहता है जी अदर एडिशनल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द कंपनी. और कंपनी के ऊपर अगर कोई और ऑब्लिगेशंस हैं जैसे उसके रेगुलेटर की तरफ से या अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस का जो रेलेवेंट लॉ है उसके हवाले से अगर उसकी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसी में शामिल होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. और एनी अदर स्टेटमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड. और फ्यूचर में SECP या अगर कोई नोटिफाई करता है कि ये स्टेटमेंट बनाना भी ज़रूरी है और दीज इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगी. ये डेफिनेशन थी जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. देन देयर इज a provision regulation 3 which talks about the reporting requirements. तो उसमें कहा गया रेगुलेशन 3 है जी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which provides a new format to be adopted and complied by the auditors which varies with the nature of the business. अब डिपेंडिंग upon the nature of business अगर वो उस और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी नेचर है. एक तो होगी जनरल कंपनी जो कि ना बैंकिंग कंपनी है और ना वो इंश्योरेंस कंपनी है, नंबर 1. और अंडर सेक्शन 249 होता है और इसको एनेक्चर 1 में डिस्क्राइब किया गया जो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा. देन सेकंड इज बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 249 और ये एनेक्चर 2 में दिया गया है. इसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट और पूरी डिटेल्स. एंड थर्ड वन इज द इंश्योरर registered under the Insurance Ordinance 2000 as required under section 48 of the Insurance Ordinance 2000 and section 249 of the Act on formats provided in Annexure 3. इसका मतलब है कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं Annexure 1, Annexure 2 and Annexure 3 and we will more focus on Annexure 1 because the cost and management accountants cannot conduct the audit of banking and insurance companies. Moving forward, then audit report on consolidated financial statements. Regulation 4 जो है वो कहती है कि जी in case the company is a holding company
तो उसमें कहा है द ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी meeting criteria mentioned in subsection 1 of section 228 of the Act shall make out a report on the consolidated financial statements as required under subsection 3 of section 228 of the Act on the format as provided in Annexure 4. तो इसका मतलब है कि चौथा जो annexure है वो consolidated financial statements के ऊपर है. Or then auditors review report on second quarterly financial statements, regulation 5. और इसमें ये कहा गया है the auditor of the listed company shall make out a limited scope review report on the members on the second quarterly financial statements prepared under section 237 of the Act on the format as provided in Annexure 5. तो रिव्यू रिपोर्ट जो है दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर एनेक्सचर 5. अब ये कुछ यहाँ डिस्कशंस हुई, कुछ सेक्शंस की हवाले दिए इन्होंने, तो मैं थोड़ा सा वो भी आपसे शेयर करता हूँ कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 228 विच रिलेट्स टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको थोड़ा सा मैं नॉट ऑल, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें क्या प्रोवाइडेड है. इसकी सबसेक्शन 1 कहती है there shall be attached to the financial statements of a holding company having a subsidiary or subsidiaries at the end of the financial year at which the holding company's financial statements are made out, consolidated financial statements of the group presented as those of a single enterprise, and such consolidated financial statements should comply with the disclosure requirements of the relevant schedule and financial reporting standards notified by the commission. तो उन्होंने कहा जी होल्डिंग कंपनी जो है वो जिसकी सब्सिडरीज हैं एक या एक से ज़्यादा, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर कंपनी की ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी एज अ सिंगल एंटरप्राइज, यानी जैसे एक सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल्स बनती हैं उस तरह की फाइनेंशियल्स बनेंगी containing the financial statements of the whole group, और जिसमें जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो रेलेवेंट स्केड्यूल है उसके मुताबिक. तो आपने देखा होगा कि जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनको ग्रुप में काम करती हैं वो अपनी फाइनेंशियल्स जो हैं वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में पेश करती हैं, एंड दिस इज मैंडेटरी. उसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइज दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी वेयर नन ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी हैज द पेड अप कैपिटल एक्सीडिंग 1 million रुपीस. तो इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी, जबकि होल्डिंग और सब्सिडरी तमाम कंपनीज में हर में से किसी का भी पेड अप कैपिटल 1 million रुपीस से ज्यादा ना हो, तो उस पे ये सेक्शन 228 अप्लाई नहीं होगी, यानी उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. तो ये थी डिटेल्स अबाउट सेक्शन 228 जो हमने पीछे डिस्कस किया. देन एक और सेक्शन का हवाला दिया गया था, दैट वाज सेक्शन 237 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज. तो सेक्शन 237 का सब सेक्शन 1 वो कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी shall prepare the quarterly financial statements within the period of 30 days of the close of the first and third quarters of its year of accounts. यानी कि उसका जो भी ईयर है उसका फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के क्लोज के 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स सबमिट करेगी और प्रिपेयर करेगी, और 60 डेज ऑफ क्लोज ऑफ इट्स सेकंड क्वार्टर. अच्छा, अब फर्स्ट और थर्ड की हमने बात की, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में वो 30 डेज के अंदर देगी और 60 डेज के अंदर वो सेकंड क्वार्टरली स्टेटमेंट देगी, बिकॉज सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट जो होती है उसमें आपकी हाफ ईयरली रिपोर्ट भी होती है तो थोड़ी डिटेल्ड होती है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम दिया गया है. इसकी सबसेक्शन 2 कहती है द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी पोस्टेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड
also be transmitted to the Commission, Securities and Exchange Commission, and filed with the registrar within the period specified under subsection 1. तो इसी पीरियड के अंदर वो कमीशन में फाइल भी करेगा यही फाइनेंशियल्स, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हैं। ये इन केस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर 30 दिनों के अंदर आप फाइल करेंगे, और इन केस ऑफ सेकंड क्वार्टर ये 60 डेज के अंदर आप सबमिट करेंगे। तो ये सेक्शन 237 था, विच वाज रिलेटेड टू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये फॉर लिस्टेड कंपनी से। अच्छा, उसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू करते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को। ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। अभी रेगुलेशन 6 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि एक रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस जो अप्लाई होती हैं वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होती हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के होती हैं, और दोनों टाइप की कंपनीज के लिए सेपरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड दिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं जी अभी। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल मेक आउट रिव्यू रिपोर्ट वेयर एप्लीकेबल टू द मेंबर्स on the statement of compliance with the corporate governance regulations on the formats as follows. So, number 1 है, in case of listed company, the review report on the statement of compliance with the listed companies code of corporate governance regulation 2017 shall be on the format as provided in annexure 6. तो 5 annexures हमने पहले डिस्कस किए थे, ये 6 annexure जो है ये लिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट ऑडिटर की तरफ से जाएगी। और इन केस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, मैंने आपको बताया कि जी पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर भी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगता है। तो पब्लिक कंपनी की सूरत में द रिव्यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 shall be on the format as issued under public sector companies corporate governance compliance guidelines 2018, read with rule 24 of the public sector companies corporate governance rules 2013। तो इसमें इन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं वो उनकी रिव्यू रिपोर्ट बनेगी with respect to the compliance with the public sector companies corporate governance rules 2013, और ये रेड विद जो इसकी कंपनीज पब्लिक कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस गाइडलाइंस 2018 रेड विद द रूल 24 ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013। तो ये 2 तरह की कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं जी। मूविंग फॉरवर्ड जी, अब पहले हम रेगुलेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट कि फिर हम जरा रिपोर्ट को देख लें। इसमें एक पेनल्टी का सेक्शन है, वो ये कहता है जी कमीशन में इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज रेगुलेशन इम्पोज अ पेनल्टी एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 512 ऑफ द एक्ट। तो इन केस के इन रेगुलेशन को आप कंप्लाई नहीं करते तो फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, जो कि एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 512 होगी। तो वो मैंने साथ ही कंपनीज एक्ट का सेक्शन 512 सब सेक्शन 2 वो भी मेंशन कर दिया सो दैट के आपको हैंड ऑन साथ ही नॉलेज मिल जाए। वो ये कहता है कि जी एनी रेगुलेशन मेड अंडर सब सेक्शन 1, अब सब सेक्शन 1 जो है वो एम्पावर करता है कमीशन को कि वो रेगुलेशंस बना सकता है। अब सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कोई रेगुलेशन जो बन गए हैं अंडर सब सेक्शन 1 may provide that a contravention thereof shall be punishable with a penalty which may extend to 5 million rupees। यानी अगर कंट्रावेंशन होती है रेगुलेशंस के साथ तो उस पे फाइन जो है वो 5 मिलियन तक हो सकता है। एंड वेयर द कंट्रावेंशन इज अ कंटिन्यूइंग वन, और अगर ये कंटिन्यूड रहते हैं आपकी जो कंट्रावेंशन है कंप्लायंस नहीं होती कंटिन्यूड बेसिस पे, with a further penalty which may extend to 100,000 rupees
for every day after the first day. तो पहले जो आपने अगर नॉन कंप्लायंस है आपकी तो 5 मिलियन रुपीस की पेनल्टी होगी, और अगर कंटिन्यू रहती है तो 100,000 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। जब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये फाइन हो सकता है। ये रेगुलेशंस जी मोटी मोटी हमने डिस्कस कर ली, और देन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी जस्ट अ मिनट, एलिमेंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब हम जा रहे हैं जी कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। एंड पे मैं आपको ना इसकी एक स्नैपशॉट भी दूंगा कि शक्ल कैसी होती है इसकी। जस्ट हम अभी क्विकली डिस्कस करते हैं पहले अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो हमसे रेलेवेंट है ज़्यादा, तो इस पे फोकस करते हैं। फॉर कंपनीज अदर देन अ बैंकिंग कंपनी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 249 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड इन एनेक्चर 1, generally auditors report of the banking and insurance business also have the same element as well with the special consideration relating to their business. तो जनरली तो ये जो रिपोर्ट है ये सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और इंश्योरेंस कंपनी में यही रिक्वायरमेंट्स हैं प्लस कुछ एडिशनल उनके बिजनेस रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो अलग उस पर ओपिनियन मांगी गई है। तो पहली चीज इसमें जो है वो है ओपिनियन। ये पहली हेडिंग है जिसमें आप ओपिनियन अपना देते हैं, ठीक है। अब मैं अपने सामने ऑडिटर रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट मैंने खोली है, और इसमें ओपिनियन में वो कहता है कि जी हमने वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी विच कंप्राइज, अच्छा अब वो था एलिमेंट्स क्या क्या थे जी, द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन and the statement of profit or loss and other comprehensive income or income and expenditure statement, the statement of changes in equity, the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. And we state that we have obtained all the information and explanation with to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. अब ये ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर स्टेटमेंट है जो इससे पहले हम दिया करते थे, सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेम थोड़े से चेंज हुए। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में वो कहता है कि in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements of financial position, profit and loss, comprehensive income and expenditure statement, a statement of changes in equity, and statement of cash flows, together with the notes forming part thereof, conform with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan, and give the information as required by the Companies Act 2017 in the manner so required, and respectively give the true and fair view of the state of the company's affairs as at date and ending date जो होगी, and of the profit or loss and other comprehensive income or loss or the surplus or deficit, the changes in equity and its cash flows for the year then ended. तो ये हमारी ओपिनियन पहली हेडिंग में आएगी, जिसमें हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ठीक है, और इस पीरियड के दौरान बनाई हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह हैं या बाकी इसमें जो कैश फ्लोज एंड नोट्स हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स यानी IFRS और ISAs जो अप्लाई होते हैं इसमें एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान और कंपनीज एक्ट इसके मुताबिक बनाई। अच्छा, अब ये आपकी ओपिनियन होगी पहली हेडिंग। सेकंड हेडिंग में आप बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन बनाएंगे, ठीक है, कि आपने क्यों ये बेसिस कैसे बनाई आपने। और उसमें वो कहते हैं कि जी हमने जो ऑडिट कंडक्ट किया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक किया है और एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, and our responsibility under these standards are further described in the auditor's responsibilities for audit of financial statements. ये documents हैं जी डिफरेंट अवेलेबल हैं, you can see
You can search on SECP's website as well. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा ये आगे इसको मैं डिस्कस करता हूँ. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन आ रहा है इसमें, उसमें उसके मुताबिक हमने की है. और देन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर द अकाउंटेंट्स, ये आईफैक की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल accountants as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan or the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. And we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient to and appropriate to provide a basis for the opinion. तो ये आप बता रहे हैं कि जी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को कंसिडर किया है, और उसके अलावा हमने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी रिपोर्ट में डिफाइन की है उसके मुताबिक किया है. और थर्ड, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है उसके मुताबिक हमने ऑडिट किया है. ठीक है. और हमने इन एथिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट की है और एक्सप्लेनेशन ली हैं, और वी फील दैट इट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. जो हम ओपिनियन दे रहे हैं ये सफिशिएंट बेसिस है हमारे पास, ये ओपिनियन जो हम ओपिनियन यहाँ दे रहे हैं उसके लिए. अच्छा, उसके बाद है जी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न. इसमें कोई फॉर्मेट नहीं दिया इन्होंने. इफ एप्लीकेबल, इसमें यह है कि इफ ड्यूरिंग योर ऑडिट यू फाइंड दैट द एंटिटी अंडर द ऑडिट इज अंडरगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसकी जो गोइंग कंसर्न स्टेटस है वो एट स्टेक है, तो फिर आप यहाँ पे अपनी ओपिनियन लिखते हैं कि जी हमने इनका देखा है, इनकी फलां जो एरियाज हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं, और वी फील दैट द कंपनी हैज अ प्रॉब्लम इन गोइंग कंसर्न. तो अनसर्टेनिटी है इसमें आप अपनी ओपिनियन देंगे. इसको कोई फॉर्मेट उन्होंने नहीं दिया. देन एम्फेसिस ऑफ मैटर इफ एनी. अब ये भी अगर हुआ कोई एम्फेसिस ऑफ मैटर, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया और आपने फाइंड आउट किया कि जी एक फ्ला एरिया में इन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फाइनेंशियल्स नहीं बनाई. फॉर एग्जांपल ये अपनी पेज जो है वो कैश में दे रहे हैं, या कोई और मैटर है वट एवर यू हैव नोटेड, तो यहाँ वो आप एम्फेसिस देते हैं. अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आप यहाँ रिपोर्ट में उसको मेंशन करेंगे. और उसके बाद है जी की ऑडिट मैटर्स. अगर उसके अलावा कोई की ऑडिट मैटर्स हैं तो वो भी आपने रिपोर्ट में मेंशन करने हैं. और वो कह रहा है की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड. द मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ our audit of the financial statements as a whole and forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. वो कहते हैं जी कि मैटर्स सिग्निफिकेंट थे और उस पर हम इसी रिपोर्ट के अंदर हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वी डोंट फील के जी इनको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाए. तो उसमें फिर आगे एक टेबल दिया गया है जिसमें जितने मैटर्स हैं वो सीरियल नंबर 1, 2, 3 और की मैटर क्या है. सेकेंड कॉलम में मैटर आप लिखते हैं, और थर्ड कॉलम में हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन आवर ऑडिट. तो इस तरह के कोई मैटर्स आप फाइंड आउट करते हैं जो आप समझते हैं कि दैट शुड बी रिपोर्टेड, तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समरी उनकी यहाँ टेबल में दे देंगे. अच्छा, नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन. रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्टिंग requirement in ISO 720 revised. तो कोई और अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो यहाँ आपने मेंशन करना है. आपने बताना है मैटर क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट कर देनी है. Then is responsibilities of the management and board of directors for financial statements.
अब इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अब ये मैं कंटेंट आपको ना समराइज कर रहा हूँ। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड fair presentation of the financial statements in accordance with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan and the requirements of the Companies Act 2017. And for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे, उनको फेयरली प्रेजेंट करे। मतलब ये नहीं कि जी ऑडिटर को समझ नहीं आ रही कि क्या बनाएंगे। इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान और कंपनीज एक्ट, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपनी की जिम्मेदारी है। और उसके लिए फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंगेज करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हो मटेरियल मिस स्टेटमेंट या एरर या फ्रॉड से फ्री हों, उसमें कोई एरर ना हो। ये एरर, फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट, इसको डिटेक्ट करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इफ ड्यूरिंग द ऑडिट अगर उसको कुछ चीज फाइंड आउट होती है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा, अब ये कि गोइंग कंसर्न को असेस करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्क्लोजिंग एज एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और अगर दे फाइंड आउट एंड दे फील दैट द कंपनी हैज अ प्रॉब्लम in the longer run, of being in existence for the longer run, तो उसको डिस्क्लोज करना भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलेस मैनेजमेंट ईदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द कंपनी और सीज ऑपरेशंस और हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो। तो उन्होंने ये गोइंग कंसर्न का स्टेटस डिस्क्लोज करना है जी, और उसमें कोई अगर मैटर्स ऐसे हैं जो गोइंग कंसर्न के लिए थ्रेट बन रहे हैं तो वो भी डिस्क्लोज करना उनका काम है। अनलेस के मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को लिक्विडेट करने जा रही है या ऑपरेशंस को सीज करने जा रही है, या उनके पास इसके अलावा कुछ चारा कार नहीं है कि जी वो कंपनी को बंद कर दें या उसके ऑपरेशन सीज कर दें। दिस इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then board of directors are responsible for overseeing the company's financial reporting process. तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखना कैसे बन रही हैं, ठीक बन रही हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये तो थी जी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है अपनी रिपोर्ट में। Our objectives are to obtain reasonable assurance that about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. तो जी अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दें। मतलब हमने कहा जी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी वो फ्रॉड, एरर्स और उन चीज़ों को पकड़े। अगर ऑडिटर को बिल्कुल इससे आज़ाद नहीं कर दिया गया, मटेरियल में स्टेटमेंट अगर है और वो अगर अनडिटेक्टेड चली गई है, तो दिस इज अ फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर। छोटी मोटी चीज़ें तो निकल जाती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में मेजर फॉल्ट्स हैं और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। और उस पे भी रिपोर्ट करना कि जी हमारी ओपिनियन ये है मिस स्टेटमेंट के ऊपर। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इज नॉट अ गारंटी दैट एन ऑडिट कंडक्टेड
in accordance with ISA's international standard on auditing as applicable in Pakistan will always detect a material misstatement when it exists. अब साथ ही जो ऑडिटर को रिलैक्सेशन भी थोड़ी दी गई कि इसके बावजूद आपने अपनी ओपिनियन देनी है, बट अगर आप डिटेक्ट नहीं कर सके मटेरियल में स्टेटमेंट, ठीक है, वो मतलब दिस इज नॉट अ गारंटी के जो ऑडिटर है वो मटेरियल में स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सकेगा. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of these financial statements. तो मटेरियल कब होंगे जी? जब कोई इंडिविजुअल एरर, फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट जो है वो या ऐसी एरर्स, फ्रॉड्स और मिस स्टेटमेंट्स इन एग्रीगेट वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती हैं, मतलब इतनी सिग्निफिकेंट हो कि उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या बाकी डिसीजंस जो है वो चेंज हो सकते हैं. तो दैट विल बी मटेरियल. As part of an audit in accordance with international standards of auditing as applicable in Pakistan, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. ठीक है जी, हम अपनी जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करते हैं. We also, अब ये इसमें 3-4-5 मैटर्स हैं. Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. तो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को ऐसे डिजाइन करते हैं हम कि उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सपोज हो सकें, और ऑडिट एविडेंस भी ऐसी कलेक्ट की जाती है ताकि अपने आप को सेटिस्फाई किया जाए कि जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं दैट इज रीजनेबली एक्यूरेट एंड गुड. द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर. क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो डिजाइंड होता है. अब फ्रॉड को डिटेक्ट करना समटाइम्स मुश्किल होता है, एरर को डिटेक्ट करना relatively आसान होता है. As fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls. तो ये उसने कहा कि जी फ्रॉड जो है वो चूंकि डिजाइंड होता है तो उसमें कोल्यूजन या फोर्जरी या जानबूझ के ओमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस की गई हैं जो कि ऑडिटर की नज़र में नहीं लाई गई, ऐसे तरीके से वो कमिट की गई हैं. इसलिए जो फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है, एरर को डिटेक्ट करना आसान है. सेकेंडली, obtain an undertaking of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. यानी कि ऑडिटर का काम यह है कि वो अंडरस्टैंड करे कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या, ताकि उसके मुताबिक वो अपना ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सके. बट ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल्स की अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर ओपिनियन देना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है. तो इसीलिए ऑडिटर जो जनरली इस तरह की जो ओपिनियंस होती हैं वो मैनेजमेंट लेटर में देते हैं इंस्टेड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. द थर्ड वन जो हम इसमें हम रिपोर्ट करेंगे, हम लिखेंगे, एवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management. अब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज इस्तेमाल हुई हैं क्या वो रीजनेबल हैं? जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इस्तेमाल हुए हैं या जो डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं मैनेजमेंट ने जो दिए हैं,
आर दे अप्रोप्रिएट, आर दे सफिशिएंट, इसको हम एवेल्यूएट करेंगे. Then next is the conclude the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting. जब गोइंग कंसर्न होता है तो अकाउंटिंग आपको पता है कि वो चेंज होती है. तो अगर मैनेजमेंट ये फील कर रही है तो क्या वो अप्रोप्रिएटली वो ठीक है उनकी ओपिनियन बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. Whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubts on the company's ability to continue as a going concern. तो आपने देखना है कि मैनेजमेंट अगर कह रही है कि जी गोइंग कंसर्न इज एट रिस्क, अनसर्टेन है, तो वो किस बेसिस पे कह रही है. आपने उनसे एविडेंस लेना है और उस पर अपनी ओपिनियन देनी है कि क्या सिग्निफिकेंट डाउट है जिसकी बेसिस पे ये गोइंग कंसर्न को अनसर्टेन कह रहे हैं. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements. तो फिर हम अगर हम समझते हैं कि अनसर्टेनिटी है तो वो हम उसका ऑडिटर रिपोर्ट में जिक्र करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे. और if such disclosures are inadequate to modify our opinion, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन को भी मॉडिफाई करेंगे. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. तो हमारे ये सारे कंक्लूजन, ये सारे एस्टिमेट्स, ये सारे एविडेंस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टिल द डेट ऑफ आवर रिपोर्ट. उसके बाद अगर कुछ होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern. इसलिए possibility is there कि कंपनी फ्यूचर में या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो गोइंग कंसर्न ना रहे. ये हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखें. एवेल्यूएट द ओवरऑल, अब नेक्स्ट है जी, overall presentation, structure and contents of the financial statement, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in the manner that achieve the fair presentation. तो हमने ओवरऑल देखना है कि जी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका कंटेंट और उनकी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके साथ नोट्स जो हैं और जो डिस्क्लोजर्स हैं वो जो ट्रू एंड फेयर वे में जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को, और सो दैट के जो रीडर है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको करेक्टली इंफॉर्मेशन मिल सके. तो ये कुछ चीज़ें जिस पे ओपिनियन देता है ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है. Then फिर वो ये कहता है जी, we communicate with the board of directors regarding among other matters the planned scope and timings of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in the internal control and we identified during our audit. Obviously during the audit हम management से in touch होते हैं, उनके साथ matters discuss करते हैं, significant जो issues हैं वो हम बोर्ड में ले जाते हैं और उनकी ओपिनियन भी लेते हैं और अपने ऑडिट का स्कोप भी डिस्कस करते हैं उनके साथ. और कोई इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं विद द बोर्ड. नेक्स्ट वो कह रहा है, वी आल्सो प्रोवाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद अ स्टेटमेंट दैट वी हैव कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड टू कम्युनिकेट विद देम all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable related safeguards. तो हम मैनेजमेंट को ये भी बताते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बताते हैं कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं फॉर ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंट, उसका नाम भी अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कह दिया गया है. तो हम अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर उनको बताते हैं कि जी हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट ये है कि जी हमें इंडिपेंडेंट रहना है और
all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on independence. यार ये अगर रिलेशंस हों तो वो हमारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे बचने के लिए हम ये काम करेंगे, सेफ गार्ड्स हम क्या करेंगे। तो ये टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शन या डिस्कशंस होती रहती हैं। From the matters communicated with the board of directors, we determined those matters that were of most significance in the audit of financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. उस डिस्कशन के दौरान ये जो फर्दर काफी डिस्कशंस होती हैं बार बार, इससे आप फाइंड आउट करते हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से हैं, की ऑडिट मैटर्स कौन से हैं, ठीक है, और हम अपने ऑडिट को अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट चीजें जो सामने आती हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और अपने ऑडिट को हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when in extremely rare circumstances we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication. तो ये जो हम फाइंडिंग्स हमारी होती हैं हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, और रेयर केसेस में अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको डिस्क्लोज करने का बेनिफिट जो है वो उसको ना डिस्क्लोज करने में ज्यादा हो, तो यानी कि पब्लिक की का जो लॉस हो सकता है उससे ज्यादा जो लॉस है वो ना डिस्क्लोज करने का है, तो फिर हम रेयर केसेस में वो डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जी रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। वो पहले भी हम जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करते थे उसमें भी सिमिलर था। Based on our audit, we further report that in our opinion, number one है कि proper books of accounts have been kept by the company as required by the Companies Act, और 2 में कहता है statement of financial position, the statement of profit or loss or comprehensive income or income and expenditure account, the statement of changes in equity and the statement of cash flows together with the notes thereon have been drawn up in conformity with the Companies Act 2017 and are in agreement with the books of accounts and returns. ये वर्ड रिटर्न्स भी ऐड कर दिया गया कि जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं उनके साथ भी इन एग्रीमेंट है। और थर्ड जो है इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो ये एक्सपेंडिचर मेड के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड के साथ गारंटीज, कोई अगर गारंटीज दी हुई हैं तो वो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ही है। और थर्ड वही ज़कात एंड उशर के ऑर्डिनेंस के हवाले से है कि जी ज़कात जो है वो डिटेक्ट हुई है और डिपॉजिट की गई है सेंट्रल ज़कात फंड में। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से हेडिंग है। और उसके बाद अदर मैटर्स प्रायर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। अगर कोई और मैटर है तो वो यहाँ पे अदर मैटर्स में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं जी द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज, वो आप अपना जो एंगेजमेंट ऑडिटर है उसका नाम लिखेंगे, आप सिग्नेचर्स होंगे, प्लेस एंड लोकेशन लिखेंगे और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट होगा। तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट थी। मैंने डिटेल में डिस्कस की बिकॉज ये रिपोर्ट हमने जो इशू करनी है, मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग इशू कर भी रहे होंगे इसी तरह की रिपोर्ट्स, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डिटेल में देखें। ये रिपोर्टिंग रेगुलेशंस जो हैं ये मैं बिलाल साहब से कहता हूँ ये आपसे शेयर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और वैसे एसईसीपी की वेबसाइट में जो लॉस में रेगुलेशंस में आप जाएंगे तो यहाँ सर्च करके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट फॉर योर फैसिलिटी हम आपको ईमेल भी कर देंगे। देन बैंकिंग कंपनीज क्या है जी। अच्छा, बैंकिंग कंपनीज में जैसे मैंने आपको बताया कि जी वो प्रॉपर वही रिपोर्ट है, ठीक है।
और उसमें कुछ एडिशनल जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि दी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द बैंक ब्रांचेस एज रिक्वायर्ड बाय द Companies Act 2017 and the returns referred about for the from the branches have been found adequate for the purpose of our audit. चूंकि वहाँ ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस से फंड्स मूव कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक ओपिनियन. The statement of financial position, the statement of profit or loss or other comprehensive income, or the statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows, together with the notes thereon, have been drawn up in conformity with the Banking Companies Ordinance 1962 and the Companies Act 2017. तो वहाँ आप Companies Act 2017 की बात कर रहे थे. यहाँ चूंकि इन पे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस भी लागू होता है, तो अब दोनों की कंप्लायंस हम यहाँ उस पर ओपिनियन दे रहे हैं. ठीक है. और एंड आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स. तो ये वही जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है पिछली रिपोर्ट में. ये नेक्स्ट 2 है. सेकंड थर्ड में जब अब इन्वेस्टमेंट मेड उस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं. इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द बैंक branches and the transaction of the bank branches which have come to our notice have been within the powers of the bank branches. ठीक है जी. यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, गारंटीज की बात हमने पहले की है पिछली रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे वो उनकी पावर्स का भी जिक्र है कि उनको उनकी पावर की लिमिट के अंदर हैं ये जो एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं. उसके बाद वो ज़कात वाला मामला भी इसी तरह ही है. और उसके बाद एक और है कि आल्सो कंफर्म दैट फॉर द पर्पज ऑफ देयर ऑडिट दे हैव कवर्ड मोर देन 60% ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द बैंक. तो बैंकिंग कंपनीज के ऑडिट के लिए लोन्स एंड एडवांसेस का 60% मिनिमम, मोर देन 60% जो है वो कवर करना भी जरूरी है. तो ये ऑडिट सैम्पलिंग जो है इस तरह की आपने डिजाइन करनी है. फिर उसके बाद आपकी ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वो चीजें होती हैं. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज में स्पेशली क्या है जी, एम्फेसिस ऑफ द मैटर में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज. उसमें आप अगर मैं एग्जांपल जो उन्होंने वहां कोट की हुई है या वहां पे उन्होंने जो वर्डिंग दी हुई है, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट, जो भी नोट है एक्स टू द रेगुलेटरी रिटर्न्स which describes the basis of accounting. The regulatory returns are prepared to meet the requirements of Section 46 of the Insurance Ordinance 2000. As a result, the regulatory return may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for जो भी कंपनी का नाम है XYZ and Securities and Exchange Commission of Pakistan and should not be distributed to parties other than XYZ और SECP. इसका मतलब है कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने कि जो आपकी रेगुलेटरी रिटर्न्स हैं, जो SECP, जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने फाइल करनी होती है, वो SECP या कंपनी के अलावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं. वो हम कहेंगे जी हमें क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है उनके लिए, तो वो ना उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाए. और आगे ये है कि जो ओपिनियन है दैट इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. अब इंश्योरेंस कंपनी में जो एनेक्चर 3 था वो उसमें फर्दर क्या है जी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, हमने पहले ये डिस्कस किया था. अब यहाँ पे बड़ा स्पेसिफाई कर दिया गया, द अकम्पनिंग रेगुलेटरी रिटर्न्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. यानी जो रेगुलेटरी रिटर्न्स आपने दी थी वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के साथ मैच करती हैं. देन द कंपनी हैज मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंड द रेगुलेटरी रिटर्न्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, द इंश्योरेंस रूल 2017 एंड द इंश्योरेंस अकाउंटिंग रेगुलेशन 2017. अदर मैटर्स में जी, द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड separate set of financial statements for the year ended December 31, जो भी उसका year end है, with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan and the requirements of the Insurance Ordinance 2000.
and Companies Act 2017, on which we issued a separate auditor's report to the members of the company. तो अगर कोई अदर मैटर्स है तो अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के मुताबिक या कंपनी एंड कंपनीज एक्ट के मुताबिक अगर सेपरेट रिपोर्ट्स बनी हैं तो सेपरेट दोनों पे अलग अलग रिपोर्ट्स इशू होती हैं. अच्छा जी, हम 3-4 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अजान हो रही है. तो वी विल गैदर अगेन इन अ फ्यू मिनट्स. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट रेगुलेशन 5 के तहत अब रिव्यू रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, उस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो है इंट्रोडक्शन, जो एलिमेंट्स हैं रिव्यू रिपोर्ट के, और उसमें हेडिंग होती है रिव्यू ऑफ द accompanying condensed interim statements of financial position of company. कंपनी का नाम होगा, एज एट जो डेट होगा, तो एज एट अगर फर्स्ट क्वार्टर है तो 31st ऑफ मार्च होगा, या 30th ऑफ जून होगा, या 30th ऑफ सितंबर होगा, या फिर 31st ऑफ दिसंबर की तो नहीं है, दिसंबर में तो पूरे अकाउंट्स जा रहे होते हैं. ठीक है. एंड द रिलेटेड condensed interim statement of profit or loss and other comprehensive income, condensed interim statement of changes in equity, and condensed interim statement of cash flows, and notes to the financial statements for 6 months period then ended. तो ये 6 months के लिए है, and notes to the financial statements for the 6 months ended then and then ended, hereinafter referred to as the interim financial statements. ठीक है. तो सबसे पहले आपने बताना है जी किस कंपनी का कर रहे हैं, किस पीरियड का कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें आपने मैंने बताना है कि जी हम ये आपसे रीडर से शेयर कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा है स्कोप ऑफ रिव्यू. In accordance with the international standards on review engagements 2410, तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है 2410. ये आप IFRS ये IFAC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. आई थिंक कि ये आपको शायद SECP की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, और फिर आपने इस पे कंक्लूजन भी देना है. तो ये उतना कंप्रीहेंसिव नहीं होती जितनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और इसमें आप ऑडिट रिपोर्ट की बजाय रिव्यू रिपोर्ट लिखते हैं. ठीक है जी. अच्छा, देन है जी, मैं एंड पे ज़रा क्विकली इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ इसके ज़रा एक शक्ल आपको ताकि नज़र आ जाए. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट, ऑडिटर्स मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट या मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट जो है वो रिव्यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कंटेन्ड इन द लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017. तो ये हेडिंग इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड से कंप्लायंस के हवाले से है. ठीक है. जो मैंने आपको कहा था ना, दो तरह के कोड्स हैं, एक लिस्टेड कंपनीज का है और एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज का है. तो ये लिस्टेड कंपनीज के लिए है. Auditor's responsibility है to review whether the statement of compliance reflects the status of the company's compliance with the provisions of the regulations, and report if it does not, and to highlight any non-compliance with the requirements of the regulations. A review is limited primarily to inquiries of the company's personnel and review of various documents prepared by the company to comply with the regulations. ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद regulations require the company to place before the audit committee
and upon recommendation of the audit committee, placed before the board of directors for their review and approval its related party transactions, and also ensure compliance with the requirements of section 208 of the Companies Act. तो उसमें ये है कि एक ऑडिट कमेटी होती है, आपको पता है लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट है। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें ये गिवन है। तो पहले इस मैटर को प्लेस किया जाता है ऑडिट कमेटी को, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं, और उसमें डिस्कस होता है कि एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी या सिग्निफिकेंट जो भी लोग हैं उनकी ट्रांजैक्शंस अगर हुई हैं कोई कंपनी के साथ तो वो डिस्क्लोज करने के हवाले से यहाँ रिपोर्टिंग होती है। तो ये थी जी ऑडिट रिपोर्टिंग रेगुलेशंस। ये आई होप के आप आज की प्रेजेंटेशन से आपको जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो ऑडिट रिपोर्टिंग रेगुलेशंस इशू हुई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आई होगी। मैं शेयर करना चाह रहा था, ड्यू टू सम रीजन मैं शेयर नहीं कर पाया। तो एनीवे दीज वर द स्नैपशॉट ऑफ द की प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशंस। और हमें बीइंग एन ऑडिटर जो अभी ऑडिट रिपोर्ट्स इशू करनी है वो इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस हैं। तो ये 2018 एंड ऑनवर्ड जो है ना इसके मुताबिक आपको अपनी रिपोर्ट्स इशू करनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप के आज का वेबिनार जो है वो बेनिफिशियल होगा फॉर द पार्टिसिपेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। जी तौसीफ अहमद कह रहे हैं जी प्लीज मेल दीज रेगुलेशंस। बिलाल साहब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको ईमेल कर दीजिएगा। देन आमिर इम्तियाज A3302 उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर की है जी। और उसके बाद और कौन है जी, मोहम्मद अकमल हैं, इन्होंने किया है, और तनवीर मोहम्मद जी। बिल्कुल सारों की अटेंडेंस मार्क कर दी जाए जी। तो विद दीज रिमार्क्स जी ओवर टू यू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर योर प्रेजेंटेशन। बड़ी इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन थी सर आपकी, और मेरा ख्याल में जो पार्टिसिपेंट्स हैं काफ़ी इससे बेनिफिट हुआ होगा, खास तौर से जो रेगुलेशंस आई हैं और क्या कहते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस बनाने में अपनी भी हेल्प मिलेगी, और जो ऑडिटर्स हैं उनको भी खास तौर से इसमें हेल्प मिलेगी। जी अच्छा, इसमें फहीम अरशद ने क्वेश्चन किया है। मैं कहते नहीं व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इशूड, आफ्टर दैट इशू अराइजेस, ऑडिटर रिपोर्ट इज पेंडिंग। In this case, after amending that issue arised, can express emphasis on paragraph. Is it right? अच्छा जी, after the audit has been completed और रिपोर्ट अभी इशू नहीं है और आपके सामने कोई मैटर इस तरह का आ गया, अब आपने वही स्टैंडर्ड अप्लाई करना है कि जी whether the matter is significant and it requires the disclosure in the financial statements or in the audit report। और इसकी सिग्निफिकेंस जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर वो जो इसका व्यूअर है या जो रीडर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट है उसको या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका अगर डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर चेंज हो सकता है, इतना सिग्निफिकेंट है, देन यू हैव टू रिपोर्ट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदरवाइज इसको उसकी मटेरियलिटी के हिसाब से आपने मार्क करना है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलें जी, बाकी लोगों की अटेंडेंस भी मार्क हो गई जी। थैंक यू वेरी मच